Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the daily lead code challenge and today's problem name is total cost to hire K workers. So the problem statement goes like this. You are given a zero indexed integer array costs where the cost I is the cost of hiring the ith worker. You are also given a two integers K and candidates. We wanted to hire exactly K workers according to the following rules. You will run K sessions and hire exactly one worker in each session. In each hiring session, choose the worker with the lowest cost from either the first candidate workers or the last candidate's workers. Break the tie by the smallest index. For example, if this is my cost array and candidates value is equals to 2, then in the first hiring session, we have to choose the fourth worker because they have the lowest cost. Why so? Because if we we have to take the first two elements from the starting and the two elements from the end, and out of these four elements, the one which is minimum is this one. So we will hire this person, and the hiring of this particular person, the cost of hiring this particular person is equals to 1. All right. If again, let's consider this particular case. If my cost array is equals to this, in this particular case, if candidate value is equals to 2, so we have to take the first two candidates from the starting and the last two candidates from the two candidates from the last, and out of these two these four candidates, the minimum cost required is 2, but the 2 is existing in both the case in both the place in the starting as well as in the ending. So in that case, we will choose the one which is having minimum index. So we will hire the first indexed worker or the first worker. If there are fewer candidates workers remaining, choose the worker with the lowest cost among them and break the tie by smallest index. A worker can only be chosen once. So we have to return total cost to hire exactly k workers. So क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमें एक costs given है. Cost is nothing but to cost of i क्या represent करता है कि what is the cost to hire the ith worker. ठीक है, हमारे पास n वर्कर्स हैं और उन वर्कर्स को हायर करने के लिए कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है. उसके बाद k एक वैल्यू बताता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स वी वांटेड टू हायर, वी वांटेड टू हायर एग्जैक्टली k नंबर ऑफ वर्कर्स आउट ऑफ दीज वर्कर्स, दीज n वर्कर्स. ओके, कैंडिडेट्स क्या बताता है कि what we are doing, we are actually conducting the sessions of hiring. So in order to hire k workers, we need to conduct k sessions of hiring because we are hiring exactly one person in one session. So इन एवरी सेशन हो क्या रहा है, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट सेशन है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडिडेट जो जिसकी वैल्यू 4 है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, फर्स्ट फोर एलिमेंट्स तो मैं स्टार्टिंग से लूंगा एंड फर्स्ट फोर एलिमेंट्स ही मैं लास्ट से लूंगा. सो दीज आर द दीज टू इनटू कैंडिडेट्स, दैट इज 8 जो मैक्सिमम अपने पास एप्लीकेंट्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, हम ऐसे बोल सकते हैं. फर्स्ट फोर फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड लास्ट फोर फ्रॉम द एंडिंग. ओके, इनमें से जो कॉस्ट मिनिमम होगी जिसकी हम उसको हायर कर लेंगे. अगर अपने पास मोर देन 2% हैविंग द मिनिमम कॉस्ट है, सो द वन विच इज हैविंग मिनिमम इंडेक्स हम उसको हायर करेंगे. सो इस एग्जांपल को देखते हैं ड्राई रन करके. सो दिस इज गिवन टू अस, ये हमारे पास कॉस्ट एरे गिवन है, हम एग्जैक्टली 3 कैंडिडेट्स हायर करने एंड जो कैंडिडेट्स की वैल्यू 4 है. सो देखिए फर्स्ट सेशन में क्या होगा, जो सेशन 1 होगा मेरे पास, उसमें मुझे फर्स्ट 4 एलिमेंट्स स्टार्टिंग से लेने हैं. 17, 12, 10 एंड 2, राइट. और फर्स्ट 4 एलिमेंट्स एंडिंग से लेने हैं, 2, 11, 20 एंड 8. और इसमें से मिनिमम होगा वो 2 है. द वन विच इज हैविंग मिनिमम कॉस्ट इज 2, बट 2 इज अकरिंग मोर देन वन टाइम, सो द वन विच इज हैविंग मिनिमम इंडेक्स हम उसको हायर कर लेंगे. सो इस कैंडिडेट को हायर कर लेंगे यहाँ पे. थर्ड जो कैंडिडेट है, थर्ड इंडेक्स पे जो कैंडिडेट है उसको हमने हायर कर लिया, और जो कॉस्ट हमें लगी है वो 2 की लग चुकी है. ओके, जो कॉस्ट हो चुकी है अभी अपने पास वो 2 हो चुकी है. जब सेशन 2 में जाएंगे, अगेन हमें फर्स्ट फोर कैंडिडेट्स स्टार्टिंग से लेने, फर्स्ट फोर कैंडिडेट्स एंडिंग से लेने.
सो देखो 2 तो जा चुका है, तो ये तो क्रॉस हो गया। अब फर्स्ट फोर एलिमेंट कैंडिडेट्स में स्टार्टिंग से लूंगा तो कैसे होगा? 17, 12, 10 एंड 7 शुड बी टेकन। एंडिंग से क्या आएगा? वही 2, 11, 20 एंड 8, राइट। अब इसमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 है, सो हम इसको हायर करेंगे। अब जो कॉस्ट हो चुकी है वो 2 + 2 हो चुकी है, एंड इस सेशन को कंप्लीट हो चुका है, हमने इस वाले बंदे को हायर कर लिया है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेशन, दैट इज थर्ड सेशन। थर्ड सेशन में मैं फिर से की एलिमेंट्स स्टार्टिंग से लूंगा। अब ये एलिमेंट भी मेरे पास एलिमिनेट हो चुका है। 17, 12, 10 एंड 7 स्टार्टिंग से फर्स्ट फोर एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं एंडिंग से लेना स्टार्ट कर रहा था, 8 लिया, 20 लिया एंड 11 लिया, बट वी डू नॉट हैव एनी अदर एलिमेंट्स लेफ्ट जिसको हम ले सकें। हालांकि एट मैक्स वी हैव टू टेक कैंडिडेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट, बट अपने पास है ही नहीं अवेलेबल कोई भी एलिमेंट इसके अलावा, सो वी शुड ओनली टेक 3 एलिमेंट्स। अब इसमें से जो सबसे मिनिमम में है वो क्या है? वो 8, 7 है, तो हम कैंडिडेट हैविंग द कॉस्ट 7 उसको हायर कर लेंगे। तो हमने इसको हायर कर लिया है, सो इसको कॉस्ट ऑफ हायरिंग 7 लगी है। सो जो टोटल कॉस्ट ऑफ हायरिंग के कैंडिडेट्स कितनी हो जाएगी? इतनी, एंड दैट्स कम्स आउट टू बी 11। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट एग्जांपल इज 11। सोल्व कैसे किया है? इसको सोल्व करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। देखिए, जो एरे गिवन थी वो ये थी। लेट मी राइट इट अगेन। लेट्स से इस बार हमें फाइव कैंडिडेट्स हायर करने हैं, एंड जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैं चूज कर रहा हूँ वो 2 है। 2 फ्रॉम द स्टार्ट, 2 फ्रॉम द एंड। तो इसकी कॉस्ट देखते हैं कितनी आती है। और इस बार हम सेम अप्रोच से सॉल्व करेंगे, बट वी विल ट्राई टू यूज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन कोडिंग। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग चाहिए, और इनमें से, और 2 एलिमेंट ही एंडिंग से चाहिए, और इनमें से जो मिनिमम होगा वो मुझे चाहिए होगा, राइट। सो फ्रंट से क्या मिनिमम एलिमेंट है और एंड से क्या मिनिमम एलिमेंट है, ये हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बता सकता है? जैसे यू गेस्ड इट राइट, इज मिन हीप या प्रायोरिटी क्यू जो होगी वो हमें क्या रिटर्न करती है? द वन विच इज हैविंग मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड इट, उसको ही रिटर्न करती है। तो मैं दो ही बना लेता हूँ। वन विल बी फॉर फ्रंट, दिस इज माई फ्रंट मिन हीप, एंड वन इज माई बैक मिन हीप। सो इनिशियली मैं क्या करूंगा, सेशन वन के लिए जो फर्स्ट कैंडिडेट एलिमेंट्स हैं उनको मिन हीप में पुश कर दूंगा, 12 एंड 17। और जो मिन हीप, जो फ्रंट मिन हीप है उसमें पुश कर दूंगा, और जो 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड मैं बैक मिन हीप में पुश कर दूंगा, दैट इज 8 एंड 20, राइट। अब फर्स्ट सेशन में देखेंगे, जो फ्रंट मिन हीप रिटर्न कर रही है वैल्यू 12, बैक मिन हीप रिटर्न कर रही है वैल्यू 8। सो आउट जो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है बैक मिन हीप रिटर्न कर रही है। सो हमारे पास, हम इस वाले कैंडिडेट को हायर कर लेंगे, इसको पॉप करेंगे। सो जो कॉस्ट हो चुकी है अभी तक वो 8 हो चुकी है, हायरिंग कॉस्ट लास्ट कैंडिडेट को हायर करने के लिए। सिंस इसको हायर कर चुके हैं हम, नेक्स्ट सेशन में क्या होगा? जब सेशन नंबर 2 आएगा, उस सेशन नंबर 2 आएगा, वहां पे हमें फिर से कैंडिडेट एलिमेंट्स चाहिए होंगे फ्रॉम द एंड। स्टार्टिंग से तो ऑलरेडी हमारे पास देख रोमिनिप्स हमने कुछ पुश नहीं किया है, कुछ पॉप नहीं किया है, सॉरी। सो द साइज इज ऑलरेडी इक्वल टू कैंडिडेट्स, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। बट एंडिंग से हमने एक एलिमेंट को पॉप किया था। सिंस नाउ द साइज इज बिकम लेस देन कैंडिडेट्स, तो हमें, और हमारे पास अवेलेबल हैं एलिमेंट्स, सो वी हैव टू पुश द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज देयर फ्रॉम द लास्ट। तो 11 आएगा, तो मैंने 11 को पुश कर दिया है। अब जो फ्रंट में लीप है वो रिटर्न कर रही होगी मिनिमम वैल्यू 12, बैक मिनिमम रिटर्न कर रही होगी 11, सो ओवरऑल मिनिमम इज 11, सो आई विल अगेन पॉप एलिमेंट्स फ्रॉम द बैक मिनिमम। सो जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग हो जाएगी सेकंड कैंडिडेट को हो जाएगी 11 के इक्वल, एंड सिंस फिर से अपना जो साइज है बैक मिनिमम का वो लेस देन कैंडिडेट हो चुका है, हमें कैंडिडेट एलिमेंट्स ही चाहिए फ्रॉम द एंडिंग, और हमारे पास सिंस अवेलेबल है एलिमेंट्स, तो फिर से नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। तो लेट्स से मैंने 2 को भी इंसर्ट कर दिया है। ऑलराइट, सो कैंसिलेशन 2 में हायर करने की कोशिश इतनी आ चुकी है। सो अब जो सेशन 3 होगा उसमें फ्रंट तो एज इट इज रहेगा, जो फ्रंट में नीव थी
उसमें ऑलरेडी मेरे पास कैंडिडेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है। जो बैक मिन हीप है उसमें अब 2 आ चुका है और 20 था, राइट। अब जो मिनिमम एलिमेंट है ओवरऑल में से वो बैक मिन हीप में दैट इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। सो जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग हो जाएगी थर्ड कैंडिडेट को, दैट वुड बी नथिंग बट 8 प्लस 11 प्लस 2। अब अपने पास फिर से साइज कम हो चुका है सेशन 4 के लिए। फ्रंट मिनी एज इट इज है क्योंकि उससे कुछ पॉप नहीं हुआ है। बैक से पॉप हुआ था, तो बैक से 2 के बाद पॉप होने के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है फिर से 7 है, तो मैंने 7 को पुश कर दिया है। लेट्स से ये अपने पास 12 के इक्वल है, ताकि फ्रंट से भी कुछ हमारे पास पॉप हो, उसको हम देखेंगे। तो अब मैंने बैक से क्या किया, यहाँ से पॉप किया है, सॉरी 2 को पॉप किया, तो नेक्स्ट एलिमेंट 7 को इंसर्ट करना पड़ेगा बैक में, राइट। अब फिर से ओवरऑल मिनिमम एलिमेंट अपने पास 7 है, दैट इज फ्रॉम द बैक मिनी, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग होगी वो 7 की इक्वल होगी। सो 8 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 7। अब अपने पास नेक्स्ट एलिमेंट फिर से मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कमिंग 12, दैट इज कमिंग इक्वल टू 12। अब जो फिफ्थ सेशन होगा, जो लास्ट कैंडिडेट को हायर करना होगा, उसमें मैं क्या हायर करूंगा, मेरे पास जो करंट में नीड बची है वो ये, और यहाँ पे मैंने 12 को इंसर्ट किया था 20। अब जो मिनिमम है अपने पास कॉस्ट, वो यहाँ से भी 12 है, फ्रंट से भी, लास्ट से भी 12 है। इस केस में हमें क्या रिटर्न करना था, क्या चूज करना था, द वन विच इज हैविंग मिनिमम इंडेक्स। और ऑब्वियसली बात है फ्रंट वाले एलिमेंट्स की इंडेक्स जो होगी वो मिनिमम होगी लास्ट वाले से। सो मैं इसको पॉप करूंगा दिस टाइम। सो जो कॉस्ट हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी 8 प्लस जो फिफ्थ कैंडिडेट को हायर करने की कॉस्ट है वो हो जाएगी 12 के इक्वल। अब लेट्स से मुझे सिक्स कैंडिडेट भी हायर करना होता, तो मैं किससे कैसे हायर करता। सो इस बार 12 जो ये पॉप हुआ है, तो फ्रंट से मेरे पास जो साइज है वो कम हुआ है, तो फिर मुझे इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब मैं 10 को इंसर्ट करूंगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 10 है। सो मैं 10 को फ्रंट मिनीट में हायर कर रहा हूँ, सॉरी इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो मिनिमम एलिमेंट है वो क्या, लेट्स से वैसे तो हमें टोटल 5 ही कैंडिडेट्स हायर करने थे एज पर द एग्जांपल, की वैल्यू 5 है, इनमें 6 था। कैंडिडेट को भी अगर हायर करना होता तो क्या सिनेरियो बनता, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अब फिर से जो मिनिमम कॉस्ट है ओवरऑल वो फ्रंट में लीव की है, जो फिर से 10 के इक्वल है, तो मैं फिर से 10 को पॉप करूंगा, और इसमें भी जो कॉस्ट थी मेरे पास ऑलरेडी उसमें 10 ऐड हो जाएगा, दिस विल बी माई न्यू कॉस्ट। अब मैं 10 को पॉप कर दूंगा, सो जो 7 को हायर करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो फिर से मेरे को 12 फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट, एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारे पास आंसर्स आएंगे। तो कुछ भी नहीं कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन को, अगर उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की बात करूँ, दो प्रायोरिटी क्यूज ली है, वन विल बी टेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ माई फ्रंट कैंडिडेट एलिमेंट्स, एंड द जो बैक वाली प्रायोरिटी क्यू है दैट इज मिन हीप, दैट इज टेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ माई लास्ट कैंडिडेट एलिमेंट्स। और जो ओवरऑल मिनिमम होगा, फ्रंट में से अगर मिनिमम आ रहा है तो मैं उसको अपने आंसर वेरिएबल में ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट उसमें ऐड कर रहा हूँ जो मिनिमम है, लाइक 11 मिनिमम था तो मैंने 11 को ऐड किया। और जिस मिनिट से मैंने पॉप किया है वो एलिमेंट, लाइक फ्रंट से किया है, तो फ्रंट में जो नेक्स्ट एलिमेंट अवेलेबल है, लाइक 17 12 के बाद 10 अवेलेबल था, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट अगर अवेलेबल है तो मैं उसको इंसर्ट करूंगा, अवेलेबल नहीं है तो मैं इंसर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। लाइक इस वाले केस में हमने देखा था फर्स्ट केस में, इस वाले केस में अवेलेबल नहीं था जब k की वैल्यू 4 थी, तो हमने इंसर्ट नहीं करा था, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे, अगर अवेलेबल है तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट को उस पर्टिकुलर मिनी में इंसर्ट करूंगा जिससे मैंने अभी एलिमेंट को पॉप किया था लास्ट सेशन में, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। लाइक एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और उनकी जो कॉस्ट एरे रिप्रेजेंट करती है, टू हायर द ith कैंडिडेट वी नीड टू स्पेंड कॉस्ट I अमाउंट। उसके बाद I initialize two min heap, one is for the front to keep the record of first candidate elements from the front, and back min heap will be taking the record of my candidate elements from the last। उसके बाद मैंने क्या किया, L और R आर द पॉइंटर्स जो हमें बताएंगे कि कितने एलिमेंट्स, लाइक कितने एलिमेंट्स हमने स्टार्टिंग से मिनट में पुश कर दिए हैं, फ्रंट मिनट में पुश कर दिए हैं, वो तो L बताएगा। R बताएगा कि कितने एलिमेंट्स फ्रॉम द एंडिंग मैंने
मिन हीप फ्रॉम द बैक मिन हीप में पुश कर दी है, राइट। सो मैं फ्रंट मिन हीप में क्या पुश करने वाला था, फ्रंट मिन हीप में मुझे फर्स्ट कैंडिडेट एलिमेंट्स पुश करने थे, तो मैंने वो सेम चीज पुश किया है। सिंस मैं ith एलिमेंट को पुश कर चुका हूँ तो मुझे एल को भी इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि मैंने बताया एल क्या रिकॉर्ड रख रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स लाइक टिल lth एलिमेंट्स फ्रॉम जीरो जीरो फ्रॉम द इंडेक्स जीरो हमने फ्रंट मिनट में ऑलरेडी पुश कर दिए हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं और द नंबर ऑफ कोस्ट एरे का जो साइज है वही लेस देन कैंडिडेट्स वैल्यू है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें तो एट मैक्स कैंडिडेट एलिमेंट पुश करने थे, बट अवेलेबल एलिमेंट्स ही कम है, तो हम जितने अवेलेबल उन सबको पुश कर देंगे। अब एल रिप्रेजेंट कर रहा है कि टिल एलथ एलिमेंट वी हैव ऑलरेडी पुश्ड इनटू माय एरे, एक्चुअली नॉट टिल, टिल एल माइनस वन एलिमेंट तक मैंने एरे में पुश किया है, देखिए क्योंकि एल की वैल्यू जीरो थी इनिशियली, तो मैंने कॉस्ट ऑफ जीरो को पुश किया, अब मेरी एल की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर वन हो चुकी है, राइट। बट इंसर्ट कितने एलिमेंट हो चुके हैं, कॉस्ट ऑफ जीरो थे। सो टिल एल माइनस वन एलिमेंट मेरे पास फ्रंट प्रायोरिटी क्यू में, फ्रंट मिनी या फ्रंट प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट हो चुके हैं, वो मेरे को एल बताता है। सेम चीज यहाँ पे अगर मेरे पास जो आर है वो क्या बताता है कि टिल आर प्लस वन एलिमेंट, ओके, टिल आर प्लस वन एलिमेंट मेरे पास बैक मिन हीप में पुश हो चुके हैं। तो मैं एन माइनस वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे एन कैंडिडेट एलिमेंट्स पुश करने हैं, राइट। सो एन माइनस कैंडिडेट एलिमेंट्स तक जाऊंगा इंडेक्सिंग वाइज देखे तो आइटरेट करना पड़ेगा, बट कंडीशन क्या है कि जो आरथ एलिमेंट जिसको मैं पुश करने जा रहा हूँ अभी, दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एल, क्योंकि मुझे पता है कि एल माइनस वन एलिमेंट वॉज द लास्ट एलिमेंट जो ऑलरेडी मेरे पास फ्रंट मिन हीप में अवेलेबल है, सो आई कैन नॉट इंसर्ट इट अगेन, ओके। सो ये मेरे पास सेकंड कंडीशन होगी। ऐसे ही करके मैंने बैक मिन हीप को भी फिल कर लिया, फ्रंट मिन हीप को भी फिल कर लिया। अब मैं हायरिंग सेशन स्टार्ट करता हूँ कंडक्ट करने। सो मुझे इन टोटल किए हायरिंग सेशन कंडक्ट करने थे, तो मैंने फॉर लूप लिखा। अब देखिए, अगर मेरे पास कंडीशन क्या है कि जो बैक मिन हीप है अगर वो एम्प्टी हो जाती है, इसका मतलब अगर मेरे पास बैक में कोई एलिमेंट ही नहीं बचता बैक मिन हीप में, सो जो भी एलिमेंट मुझे जो हायरिंग करने के टाइम पे बंदा चाहिए वो फ्रंट मिन हीप से ही उठाना पड़ेगा। अगर एम्प्टी हो जाता है तो मैं डायरेक्ट जो फ्रंट मिन हीप से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा, राइट। अगर मेरे पास फ्रंट जो अपने पास बैक मिन हीप है वो एम्प्टी नहीं है, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जो अगर मेरे पास फ्रंट में लीफ का जो कॉस्ट है वो या तो लेस देन है या इक्वल है मिनिमम कॉस्ट ऑफ बैक मिनीप। ऐसा क्यों, देखिए अगर लेस देन होगी अपने पास फ्रंट मिनीप की जो मिनिमम कॉस्ट होगी तो उस केस में तो मुझे उसकी कैंडिडेट को हायर करना है। अगर इक्वलिटी भी होल्ड होती है तो हमें क्या करना था, हायर द वन विच इज हैविंग मिनिमम इंडेक्स, और हमें पता है फ्रंट मिनीप की जो एलिमेंट्स है उनके इंडेक्स मिनिमम होंगे। सो हमने उसको पुश कर लिया है। अब कंडीशन चेक करेंगे कि अगर मेरे पास एल लेस देन इक्वल टू आर है, क्योंकि अब मैं एलथ एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहा हूँ, राइट, अपने पास नेक्स्ट सेशन के लिए अपने पास फ्रंट मिनट में, क्योंकि मैंने फ्रंट मिनट से एक एलिमेंट को पॉप किया है। तो कंडीशन क्या, अगर मेरे पास एलिमेंट अवेलेबल है, जो आर एफ पॉइंटर बताता है कि टिल आर प्लस वन इंडेक्स मैंने बैक मिनट में ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं कैंडिडेट्स को और एलिमेंट्स को, तो बता चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास एल जो करंट वैल्यू जिसको मैं इंसर्ट करने वाला हूँ मिनट में, क्या वो मेरे पास आर से लेस देन इक्वल टू है नहीं। अगर एल की वैल्यू बड़ी होती तो उस केस में तो वो एलिमेंट ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है बैक में नहीं, तो उसको मैं फर्दर इंसर्ट नहीं कर सकता होता। बट इन दिस केस इफ द कंडीशन इज वैलिड, तो मैं एल एफ इंडेक्स को अपने फ्रंट मिनट में पुश कर दूंगा और एल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा। सेम चीज फॉर द बैक, जो हमने फ्रंट के लिए क्या है, अगर फ्रंट फ्रंट जो प्रायोरिटी क्यू है वो ऑलरेडी फ्रंट में नहीं पे वो एम्प्टी हो जाती है मेरी, तो उस केस में मैं डायरेक्टली बैक से एलिमेंट जो मिनिमम एलिमेंट है बैक से उसको अपने आंसर में ऐड कर दूंगा। और अदरवाइज मैं क्या चेक करूंगा कि जो मेरे पास बैक मिनी का लास्ट एलिमेंट है वो मेरे पास छोटा है अपने पास फ्रंट मिनी के मिनिमम एलिमेंट से, ठीक है। तो अगर बैक मिनी का मिनिमम एलिमेंट फ्रंट मिनी के मिनिमम एलिमेंट से छोटा है तो मैं बैक मिनी से एलिमेंट को पुश करूंगा, अब पॉप करूंगा। सो मैंने पॉप करके आंसर में ऐड कर दिया है। अब मैं वो सेम कंडीशन चेक करूंगा, अगर आर एस इंडेक्स को मैं पुश करने वाला हूँ अपने पास बैक मिनी में, बट कंडीशन ये कि आर एस इंडेक्स अगर मेरे पास एल से छोटा होता, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज ऑलरेडी इंसर्टेड इन द फ्रंट मिनी, तो मैं उसको इंसर्ट नहीं कर सकता फर्दर बैक मिनी में। बट अगर कंडीशन वैलिड है कि आर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल, तो मैं आर एथ जो इंडेक्स पे कैंडिडेट है उसकी कॉस्ट को
बैक मैन्यूअल में इंसर्ट करूंगा और आर की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दूंगा फॉर नेक्स्ट सेशन। तो ऐसे करके हमने सेम कोड जो हमने यहाँ पे देखा था इसको इम्प्लीमेंट किया है। एंड एट द एंड जो ओवरऑल कॉस्ट मुझे मिलेगी वो मैंने आंसर वेरिएबल में accumulate करा ली है एंड आई विल रिटर्न इट इन द एंड। So thank you guys for watching this particular tutorial. आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or recommendation for me, write it down in the comment section. Thank you.